Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Rain in Summer given in class 7 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. This is a very big poem and it is composed by Henry Wordsworth Longfellow. So students, first I will read this poem line wise and after this I will discuss the Hindi explanation. So be with me and let's start. Rain in summer. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. How it clatters along the roof like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat up the overflowing spout. Across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide, like a river down the gutter roars, the rain, the welcome rain. The sick man from the chamber looks at the twisted roof. He can feel the cool breath of each little pool. He fevered brain grow calm again, and he breathes a blessing on the rain. From the neighboring school come the boys with more that their wonted noise and commotion, and down the wet streets sail their mimic fleets, till the treacherous pool engulfs then its whirling and turbulent ocean in the country on every side, where far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain. How welcome is the rain in the frown land, the toilsome and patient oxen stand, lifting the yoke encumbered head with their dilated nostrils spread. They silently inhale the clover-scented gale, and the vapors that arise from the well-watered and smoking soil. For this rest in the furrow after toil, their large and lustered eyes seems to thank the Lord more than man's spoken word. Near at hand, from under the sheltering trees, the farmer sees his pastures and his fields of grain as they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain. He counts it as no sin that he sees therein only his own thrift and gain. हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने जो इस पोएम को लिखा है वो रेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब समर, आपको पता है कि जब समर सीजन होता है, बहुत गर्मी होती है, चारों तरफ चिलचिलाती हुई धूप हो, तपती हुई सड़कें हो, तो आपको अगर बारिश हो जाती है तो कितना प्लीजेंट फील होता है, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी ही एक बारिश को ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलते पढ़ते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट, यानी कि जब बहुत गर्मी पड़ रही हो, बहुत चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, तप रहा हो, उस समय जब बारिश होती तो कितना सुंदर फीलिंग आता है, कितना सुंदर लगता है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। इन द ब्रॉड यानी कि चौड़ी चौड़ी सड़कें, और फायरी जो कि मतलब जल रही हो, बहुत गर्मी से तप रही हो, आग उगलता हुआ सड़क। इन नैरो लेन जो पतले पतले गलियारे हैं, रास्ते हैं। अगर जब वहां गर्मी के बाद और जो बहुत ज्यादा धुंध उड़ती है गर्मी में तपने के बाद, तो जब बारिश होती है, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, मतलब ये बारिश कितनी सुंदर लगती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ होप, और जब ये बारिश होती है तो छतों पे कितना जोर से जो आवाज आती है, जो बारिश की आवाज होती है, जो क्लैटर यानी कि जो मेटलिक साउंड आता है, वो ऐसे लगता है जैसे कि किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज आ रही है। How it gushes and struggle out from the throat of the overflowing spout. तो how it gushes and struggling out, मतलब ये जो इतनी तेजी से जो बारिश होती है उसके बाद वो नीचे आने के लिए आतुर होती है, वो पानी छत से, रूफ से जब बारिश होती है तो बहुत तेजी से छत के जो नाला जो पाइप लगे होते हैं, उस पाइप से बहुत तेजी से, और जो बूंदे हैं, पानी की जो बूंदे एक दूसरे से स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई, और बहुत तेजी से फ्रॉम द थ्रोट, मतलब उस पाइप से, उसके गले से, यानी कि पाइप से गुजरती हुई, ओवरफ्लोइंग स्पाउट, उस
स्पाउट मीन्स होता है नल, यानी कि उसका जो उसका मुंह है, यानी कि पाइप का जो मुंह है उससे तेजी से ओवरफ्लो करते हुए निकलती हैं। गसेस एंड स्ट्रगल मतलब संघर्ष करती हुई और तेजी से ओवरफ्लो होती हैं उस पाइप के मुंह से। अक्रॉस द विंडो पैन, और जैसे कि यहाँ पे छत से पानी गिरता है तो वो पाइप से बहुत तेज आवाज करते हुए निकलता है। इसी तरीके से जो जैसे आप यहाँ पे देखते हो विंडो पैन खिड़की, तो आपको वो बारिश जब होती है तो वो जो बारिश की बूंदें हैं वो तेजी से विंडो पैन से होते हुए भी आती हैं। इट पोर्स यानी कि पूरे विंडो पैन को भिगोती हुई उसके लगातार गिरती हैं। एंड स्विफ्ट एंड वाइड यानी कि बहुत तेजी से, और चारों तरफ वो पानी ही पानी फैला होता है, यानी कि विंडो पैन पे, रूफ पे, हर जगह पानी ही पानी होता है। विथ अ मडी टाइड, और जो उससे पहले के जो डस्ट उड़े होते हैं, धूल गंदगी होती है, तो थोड़ा वो जो पानी होता है वो गंदा होता है। मडी यानी कि कुछ कीचड़ नुमा पानी भी, उसके जो गंदा पानी सड़क विंडो पैन से तेजी से निकलता हुआ नीचे गिरता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर टू, और जो गटर्स हैं यानी कि जो सड़क पे जो नालियां होती हैं वो भी एक नदी जैसे बन जाते हैं, और वो बहुत आवाज के साथ, बहुत जोर का, आप देखते हो जो बहुत तेज बारिश हुई हो और नाले से पानी गिरता है तो एक आवाज निकलता है, जो साउंड निकलता है वो एक जैसे लगता है कि नदी बह रही हो, और रोर ये मतलब एक दहाड़ने की आवाज आती है। द रेन द वेलकम रेन, और इस तरीके से जो गर्मी का जो बारिश है उसका स्वागत किया जाता है, यानी कि बहुत ही प्लीजेंट होता है। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स, और जब ये गर्मी में बारिश होती है तो एक जो बीमार आदमी है वो अपने चैम्बर से, अपने रूम से बाहर देखता है। एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी तुड़ी, मतलब जो घुमावदार मुड़ी है। ब्रूक्स मतलब जो छोटी नदी हो गई, जो नाले मतलब नदी का रूप ले लिए हैं, उसको वो देखता है। ही कैन फील द कूल, और उस बारिश को देखकर वो अपने आप मन में ठंड महसूस करता है, यानी कि उसके दिमाग को उसको कंफर्ट मिलता है और वो ठंड महसूस करता है, ठंडक महसूस करता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और वो ठंडी सांसें लेता है, मतलब उस नदी से जो पूल है बन गया है, तालाब बन गया है, उन छोटी छोटी नदियों को देख के वो गहरी और ठंडी सांस लेता है। हिज फीवर्ड ब्रेन, ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, हिज फीवर्ड ब्रेन, फीवर्ड मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टलेस माइंड ड्यू टू फीवर, क्योंकि उसका जो फीवर की वजह से जो उसका दिमाग था, उसका जो सर था, उसका जो ब्रेन था वो रेस्टलेस हो गया, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको अनईजी फील हो रहा था। तो इस बारिश से वो ठंडक महसूस करता है और उसमें फिर से उसको एक अच्छा फीलिंग आने लगता है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोस काम अगेन, मतलब उसका जो दिमाग है जो रेस्टलेस था अब थोड़ा शांत हो जाता है। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो गहरी सांस लेता है, ठंडी सांस लेता है और रेन को आशीर्वाद देता है। मतलब उसको जब गर्मी में बारिश के बाद, क्योंकि एक पेशेंट जो है बीमार है, उससे वो गर्मी से और अपने फीवर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो जब बारिश होती है तो उसको बहुत कंफर्ट फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और इस वजह से उस बारिश को आशीर्वाद देता है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम्स द बॉय, और पड़ोस में ही जब बारिश होती है तो पड़ोस में जो बच्चे स्कूल से आते हैं, नेबरिंग स्कूल फ्रॉम कम्स द बॉय, जब बच्चे आते हैं विथ मोर देन देयर वांटेड नॉइज, वांटेड मतलब होता है यूजुअल, तो अक्सर तो जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो आवाज करते हुए, शोर शराबा करते हुए आते हैं। एंड कमोशन, लेकिन जो आज है वो उससे और भी ज्यादा है, कमोशन मतलब और भी शोर शराबा हो गया, मतलब जो पहले जो यूजुअल आवाज है उससे भी ज्यादा आवाज कर रहे हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट, और जो भीगी सड़कें हैं उस पे, जो नीचे जो भीगी सड़कें हैं जिसपे बारिश हो रही है, जिसपे पानी बह रहा है, सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, वो अपने कागज पेपर बोट बना के उसमें तैरा रहे हैं। till the treacherous pool engulfs them its whirling and turbulent ocean, तो वो क्या करते हैं कि जब वो पेपर बोट को बहा रहे हैं और उसको तब तक एंजॉय करते हैं, तब तक देखते हैं जब तक कि वो गोल गोल घूमकर, जहां पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, जब तक कि उनकी मतलब समुद्र जैसे, जहां पे समुद्र जैसा मतलब कि बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ और गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पे आप देखा होगा अपने सड़कों पे जब बहुत तेज पानी बढ़ता है और जहां पे इकट्ठा होता है वहां थोड़ा ऐसे वेव्स टाइप में गोल गोल घूमने लगता है, तो वो तब तक अपने पेपर बोट को वहां तैराते हैं जब तक कि उनकी पेपर बोट उसमें डूब नहीं जाती है। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, अब यहाँ पे आप देखो इन कंट्री मतलब पूरा जो हमारा कंट्री साइड है, यानी कि हमारा जो पूरा देश है, शहर है, उसके बारे में बात हो रही, तो जो पूरा शहर है ऑन एवरी साइड मतलब हर कोने में क्या हुआ है, वेयर फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक और चौड़ी, जहां पे हमें दिखाई दे रहा है हर जगह सिर्फ क्या दिख रहा है, लाइक अ लेपर्ड टाइनी एंड स्पॉटेड हाइड, जैसे कि एक लेपर्ड पे
चीते पे आपने देखा होगा कि येलो कलर पे ब्राउनिश स्पॉट लगे होते हैं, बने होते हैं, गोल गोल धब्बे बने होते हैं। ऐसे ही स्ट्रेचेस द प्लेन, ऐसे ही हमारी पूरी धरती पे जो, क्योंकि हमारी धरती पे जो अर्थ पे हमारा जो पानी का जो उसका भाग है वो ज्यादा है, और जो लैंड है, प्लेन लैंड है, वो कम है। तो इस पूरे पानी पे ये जो प्लेन जो चीजें हैं वो जैसे चीते के शरीर पे जो स्पॉट दिखाई देता है, उसी तरीके से ये प्लेन हमारे पूरी अर्थ पे दिखाई देता है। यानी कि जो समतल जमीन है पानी से कम मात्रा में है, कम जगह पे है, तो ऐसे ही पृथ्वी पे चारों तरफ ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ पानी है और कहीं कहीं प्लेन दिखाई दे रहा है, जैसे कि चीते के शरीर पे टाइनी स्पॉट्स दिखाई देते हैं। टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन, और जो सूखी घास है और जो सूखे फसल, जो फसल मतलब सूख गई जिसमें पानी की जरूरत है, हाउ वेलकम इज द रेन, वो कैसे इस बारिश का स्वागत करते हैं। मतलब कि ये जो सूखी घास है जिसको पानी की जरूरत थी, और जो बहुत सारे जो फसल हैं जिसको पानी की आवश्यकता थी, जब ये बारिश होती है तो उसका बहुत ही वेलकम, मतलब बहुत ही खुश होके बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करते हैं। इन द फ्रोन लैंड, फ्रोन मतलब फरोड लैंड, सॉरी, इन द फरोड लैंड, फरोड लैंड मतलब प्लोड लैंड जिसपे जुताई हो चुकी है खेत की। द टॉयलसम एंड पेसिन ऑक्सन स्टैंड, टॉयलसम मतलब कि जो बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, हार्ड वर्क कर चुके हैं, पेसिन और धैर्य होके, मतलब वहां पे जो बैल खड़े हैं। लिफ्टिंग द योक इन कम्बर्ड हेड, तो उनका जो सर पे लकड़ी का जो बना होता है, जो आप देख सकते हो लकड़ी से बना हुआ, जिसको हम एक फ्रेम होता है जिसमें बैलों के गले में डाल के जुताई की जाती है, तो वो अपने उनके जो गले में ये लकड़ी का जो ढांचा है उसको डाला हुआ है। उसके बाद भी वो अपने सर को ऊपर उठाते हुए, यानी कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद और थकने के बाद ये जो बैल हैं बहुत ही धैर्य से खड़े हैं, एंड अपना जो सर है उस लकड़ी के जो फ्रेम है उसको उनके गले में पड़ा हुआ उसको रहते हुए भी अपने सर को ऊपर उठाते हैं। विद देयर डायलेटेड नॉस्ट्रिल स्प्रेड, और अपने नाक को थोड़ा फैला के, यानी कि जो नॉस्ट्रिल है वो अपने नाक को और चौड़ा फैलाते हैं। दे साइलेंटली इनहेल, और चुपचाप से वो सांस को अंदर खींचते हैं। द क्लोर सेंटेड गेल, उन हवा को, गेल मतलब जो भारी जो हवा है, बहुत तेज हवा आ रही है बारिश के बाद, और जो सेंटेड यानी कि जब बारिश होती है गर्मी में तो एक सोंधी सोंधी महक आती है, उस महक को वो, उस हवा को वो बहुत तेजी से अपने नॉस्ट्रिल में इनहेल कर रहे हैं। एंड द वेपर्स दैट अराइज, वेपर्स मतलब जब बहुत गर्मी होती है और बारिश होती है तो जो भाप निकलता है, जो भाप निकल रहा है फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, मतलब क्योंकि जो अब धरती पूरी भीग चुकी है और स्मोकिंग सॉइल उसमें से जो भाप निकल रहा है वो ऊपर उठ रहा है। फॉर द रेस्ट इन फरो आफ्टर ट्वेल्व, और फॉर द रेस्ट क्योंकि अब बारिश होने लगी है तो जो जुताई का काम था वो बंद हो चुका है, और कुछ समय के लिए इन बैलों को थोड़ा रेस्ट मिल चुका है अपने इस परिश्रम के, पूरे इतने परिश्रम करने के बाद। देयर लार्ज एंड लस्टर्स आई, उनकी बड़ी बड़ी और चमकती हुई जो आंखें हैं क्या कर रहे हैं, ऊपर वो देख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ अपना सर उठा के उसको देख रहे हैं। सीन्स टू थैंक द लॉर्ड, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि उनको एक ठंडक मिल रही है, उनको आराम मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, और उनको एक बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा रेस्ट मिल रहा है बारिश की वजह से। मोर देन मैन स्पोकन वर्ड, तो जो सीम टू थैंक द लॉर्ड मोर देन मैन स्पोकन वर्ड, तो ये जो बैल हैं वो भगवान को ऐसा लगता है जैसे कि वो धन्यवाद देते हैं, और इतना धन्यवाद दे रहे हैं जितना कि अभी इंसानों ने अपने शब्दों में ये थैंक नहीं दिया, यानी कि भगवान आदमियों से ज्यादा वो ये जो बैल हैं भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। नियर एट हैंड, और इसी के पास में, फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्री, मतलब एक पेड़ की छाव के नीचे से, द फार्मर सी, वो जो किसान है वो देखता है, हिज पास्टर्स एंड हिज फील्ड ऑफ ग्रेन, मतलब कि वो अपने जो चारागाह है और जो वहां पे जो खेत है जिसमें अनाज उसने बो रखा है उन खेतों को वो देखता है। एज दे बेंड देयर टॉप्स, और वो देख रहा है कि उनके खेतों में जो फसल लगी हुई है, जो अनाज लगे हुए हैं, उसकी जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप है, वो क्या हुआ है, झुक गया है। टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप, क्योंकि उस पर बहुत सारी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो बारिश की बूंदों की वजह से वो भारी हो गए हैं और उसके जो टॉप हैं वो थोड़े झुक गए हैं। ऑफ द इंसेंसेंट रेन, मतलब जो कंटिन्यूअस बारिश हो रही है उसकी वजह से, ही काउंट्स इट इज नो सिन, और वो इस चीज को कहता है कि ये बारिश जो हो रही है वो कोई पाप नहीं, मतलब ये उसके लिए बुरा
नहीं है, बारिश का होना उसके लिए बहुत अच्छा है। दैट he sees there in only his own thrift and gain। तो वो उसमें क्या देखता है कि ये जो बारिश है उसमें उसका फायदा है और सिर्फ उसका लाभ है, उससे उसको अच्छा मिलेगा, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो आपने इस पोएम में देखा स्टूडेंट कि पहले में तो जो पोएट है वो बताते हैं कि कैसे समर में जब बहुत चिलचिलाती हुई धूप होती है, सड़कें जल रही होती हैं, तो बारिश होती है तो कितना अच्छा फील होता है, कितना सुंदर लगता है। और जो सड़कें हैं और जो रूफ है, छत है, उसमें कितना तेजी से उनकी जो पाइपलाइन है उसमें पानी आता है और उनके मुंह से ओवरफ्लो करता हुआ बाहर निकलता है। और जो उसकी जो आवाज है बारिश की छतों पे वो बहुत ही ऐसा लगता है किसी भारी कदमों की आवाज चल रही है। दूसरे में आपने देखा कि ये जो बारिश है वो विंडो से भी होते हुए आती है और सारे जो धूल वगैरह है उसको धुलती हुई कीचड़ के साथ वो पानी पूरी विंडो से होते हुए बहती है। और एक जो बीमार आदमी है उसको भी ये बारिश कितना अच्छा लगता है और उसके जो रेस्टलेस माइंड है उसको थोड़ा आराम देता है। इसी तरीके से जब जो लास्ट इसमें पैरा है तीसरा, इसमें आप देखते हो कि बच्चे भी, मतलब पोएट बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी इस बारिश को कितना एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल से आते हुए वो इस बारिश को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि वो अपनी पेपर बोट बना के उस जो नदी बन गई है सड़क पे उस पे वो पेपर बोट अपना तैरा रहे हैं। इसी और पोएट ये भी कहते हैं कि जो पूरा फार एंड वाइड यानी कि दूर दूर तक चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है और उसमें जो प्लेन है, जो समतल भूमि है, वो स्पॉट की तरह जगह जगह दिख रही है। इसी तरीके से यहाँ पे जो बैल हैं वो भी अपने आराम करने के बाद इस बारिश की वजह से उनको रेस्ट मिल रहा है और वो इस सौंधी सौंधी खुशबू अपने नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं। और किसान इसको जो बारिश हुई है उसको भी वो इंजॉय कर रहा है क्योंकि इस बारिश से उसको फायदे ही फायदे होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। वेरी थैंक